Camera rolling, action! Sorry, couldn't wait. Because today's guest has leveled up snack game from those namkeens and biscuits to these nachos and dips. From organic India to cornitos, he spiced up categories, decoded Indian taste buds, and built brands that stick not only to the shelves but also to our minds. Manoj Singh has marketed everything from wellness to these extraordinary flavors. So today we munch and crunch into all those consumer insights, brand truths, as well as those top secret flavors that have not made it to the shelves yet. Welcome Manoj to this podcast. You have been a full stack marketer from POSM to Scroll Now with D2C and Q-commerce. You have worked in both mass as well as premium positioning inside out. You've looked at new age food brands as well as worked in high volume staples. You have kind of defined, food buying behavior of mothers who are looking to buy in the category of rupees 99. You've also changed the behavior of Gen Zs looking at buying snacking through Blinkit today, right? So with all of this happening, we would love to hear some of the learnings and some of the how do you look at marketing through this entire lens? So I think first thing, thank you so much, buddy, to invite me for this wonderful podcast. And if I talk about from as a marketer, so yes, as you mentioned, from POSM to D2C, including BTC like Blinkit and quick commerce. So that's totally depending on the tenure basis, and each and every descent has a called different criteria, different agenda for the consumer. And when I talk about, you mentioned about the mothers, so yeah, because I am currently working as a coordinator, so be a food brand. This is very important for me to choose an actual consumer and who teach their kids about their sensory and their taste palette. And from marketing point of view, it's very critical to choose a TG, to choose a way of marketing, how you're going to promote your product. And if I say important, so yeah, from the POSM, it's very short sentence you mentioned the POSM, but it's very defining, very vital role in marketing. And from B2B, from D2C, it's a totally a digital era, I can say. But the consumer the consumer touch point is not happening from the digital. And but yes, because the consumer, the millennial Gen D and the Gen Z consumer is coming in the India palette. So that for that the brand needs to become the digital. But the comparison from POSM and digital is still constant in the market. And every marketing thought is very important for the consumer from the marketing also. आपने अभी बहुत अच्छे से ये बोला कि डिजिटल पे ब्रांड जितना मर्जी मार्केट कर ले बट इट्स स्टिल POSM डिपेंडेंट. However, right now all the FMCG are looking at an omni-channel strategy. सब लोग एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हम Blinkit पे, Zepto पे, Swiggy, Instamart पे कैसे हम maximum selling कर सकते हैं. आपके अपने कैटेगरी में Doritos और Cornitos की अपनी एक war है, daily war है. How do we get the first position when it comes to these these quick commerce brands? In all this, how do you look at defining the GTM कि आप consumer के mindset में first recall बना सकें कि in spite of that first display of any product, आपका product पहले buy हो? So see, as you mentioned, the running change of the brand wise. So the reason behind that there was no backend data for the brand because they come in the first time in Blinkit and Q-commerce. And when they saw the number in Excel, the growth was 100% to 100%. But other hand, when they calculate the expenses from the particular sale, there was nothing, right? And to sell a product on quick commerce is no easy task for any brand. And I can say that that brand, the marketer understand the actual pain because brand has to be present on the digital era because the actual TG was come on the Insta and Facebook and Meta also. So, but again, I can say I'm not, opposite about the digital, about the quick commerce part, but the retail presence is still a profitable business for the brand point of view. But to sustain a digital era for the brand is necessary to keep their product on quick commerce platform because now as a food brand, we comes under the impulse category. अगर आपको अभी तुरंत खाना है तो
you cannot wait around 2 days, 3 days from my D2C website. You need at least 10 minutes or 20 minutes max to max. But to deliver your product, what is the back-end cost? What is the cost of what I am paying to the particular platform? That the brand knows, the consumer doesn't know, right? Because the consumer each and every time wants the different type of offer, different type of discount. Because and retail also, in similar in retail, we are selling the product on MRP. But quick commerce पे me as a consumer also हमेशा हम offer पे ढूंढते रहते हैं, right? But there was no long-term business on a Blinkit or quick commerce platform. Yes, there would be a chance to a long-term if the back-end cost, the other exponential cost has been reduced. Then might be it's a very profitable business for any brand, because अभी होता क्या है that business बहुत बड़ा हो जाता है, करोड़ों का business quick commerce से सेल आ जाता है, बट उसकी जब हम एक्सपेंस निकालते हैं बैकएंड में, तो एक्सपेंस उतना ही ग्रोथ होता है जितना कि आपकी सेल ग्रोथ होती है. बट अदर देन व्हेन वी टॉक अबाउट जीटी, सो जीटी में इट्स टोटली पॉइंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट. दे रिक्वायर वेरी लॉजिकल थॉट टू कीप योर प्रोडक्ट इन आई कैचिंग लेवल ऑफ योर कंज्यूमर, राइट? फॉर दैट देयर वाज नथिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. वेरी वेल सेड. एंड आपने इसमें ये भी मेंशन किया अभी कि प्रोडक्ट का टेस्ट, पैलेट और पैकेजिंग or sensory modulation, for example, the crunch of the nachos is very, very important when you're selling these products. So while you're looking at all this, how do you plan the next product that you want to launch in the market, which gets to, say, an urban millennial also? Tier 2 का अपना एक consumer behavior pattern है. Correct. आप different TGs देख लो, आपको mother को करना है तो different product packaging and taste है. So how do you look at the next product launch? So I think, because we as Indians again now depend and follow the Western culture, and like our palate was not fixed, but we're trying to explore our palate. And as a FMCG brand, as a food brand, the innovation we call as innovation brand, and innovation is very important, at least in snacks, because it comes in the impulse category. और मुझे ऐसा लगता है कि that sensory is the part where we trying to check the palate of the consumer. Now the question comes, how the brand is test the consumer palate, right? There's no rocket science. The rocket science is the trending value, right? What's the trending in the market? Like as you mentioned, yes, मेरे पास I think almost top trending flavors है मेरे पास, but still I'm feeling कि नहीं, there was some gap. So for that, first we do a research from the different agency to collect the trend of the market, how market is coming, right? Again in India especially, अगर सच बताऊं तो आउट ऑफ इंडिया में अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो दैट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी सिंपल रिसर्च हैपन. बट फॉर इंडिया स्पेशली, नॉर्थ की टेस्ट अलग है, वेस्ट की अलग है, ईस्ट की अलग है, साउथ की अलग है, राइट? सो फॉर इंडिया में लॉन्च करना इज वेरी टिपिकल, वेरी हार्ड रूल कंपोजिशन कम्स इन. एंड बट एज अ ब्रांड वी डोंट बिलीव ऑन रीजनल फ्लेवर, वी बिलीव ऑन नेशनल फ्लेवर. लाइक अदर कंपीटिटर ब्रांड्स इज डूइंग रीजनल फ्लेवर ऑल्सो. बट आई थिंक मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि फ्लेवर होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज आल्सो समहाउ डिफरेंशिएट द कैटेगरी, डिफरेंशिएट द जोन आल्सो, राइट? कि आपको वेस्ट नहीं, आपको साउथ नहीं बेचना, आपको वेस्ट नहीं बेचना, दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया. बट sensory, I can say we do internal sensory, we have a proper quality, we have a proper R&D team. And test like mixing the flavor, mixing the seasoning, mixing the seasoning is called a sensory, right? And what is the base? किस बेस पे आप सेंसरी करना चाह रहे हो? Either you're going to put on corn, either you're going to put on potato, either you're going to put on any base, right? This is also very important part, because India में like potato chips का एक बहुत बड़ा market है, right? And I can say that was not healthy because they use like palm oil, right? They're not healthy for the consumer base, but consumer need a potato chips. There is still a number one market product in India. Like us as a Cornitos, we believe that that we are selling our premium product. We are not any differentiate about my quality or my flavor. And yes, you mentioned the packaging part. Packaging is also very critical parameter of any brand, because for consumer I think उसको gloss mat को पता नहीं चलता,
उसको GSM को नहीं पता होता for GSM are using. But me as a brand head, it's very critical part for me to choose a GSM to the particular laminate. Which laminate are going to use, either yellow, either brown, either mustard yellow, either any color of laminate. Second thing about the packaging lamination part, right? Some people are using gloss. We are the only one brand who is using the matte finish. I agree that कि matte finish में बहुत जल्दी गंदा होता है. But other hand, that looks a premium, right? And that's why in a market where 20 rupees is also there and 40 rupees. Yeah, see, उसमें मतलब ऐसा होता है that my product was keeping in like a standalone outlet, right? Yes, for these type of store, as you mentioned, 20 rupees, 10 rupees. Yes, we have 20 rupees product, but उसमें भी हम matte use करते हैं, हम gloss use नहीं करते हैं. Because see, some calls is very important for the brand to choose a differentiate from their competitor, right? And but yes, other hand for the puff, we have a puff also. Puff is known for the gloss only. अगर आप puff category को matte में लेके जाते हो, there's no look like a premium because puff is known for the kids. Kids के लिए I think matte और laminate मतलब फर्क नहीं पड़ता. But the TG what I am looking for my especially nachos. The TG was very, I can say very premium TG, very A plus TG. They actually knows that what lamination or brand are using. Because मैं तो CRM also I'm taking, तो उसमें तो ऐसे भी कंप्लेंट आते हैं कि आपका लेमिनेट बहुत अच्छा है, आपका ये लेमिनेट बहुत गंदा आता है ना. तो I'm like facing such issue from the consumer, and I can say in a current scenario in India market, consumer wants the quality. They don't want to focus on the pricing part. If you're selling a product in a maximum pricing, nothing, don't worry. But the quality what you are going to sell in the market is very premium part. वो बहुत ही जरूरी है. और because I'm also targeting not rural villages. I'm targeting only urban only because currently I think I am available in more than 1 lakh outlets in India. Wow. And but that was not wow for me because in universe that was 0.1% only in pan India level. But yes, that universe was counting the rural also, the urban also. But I feel very happy with my numbers, with my presence, and we are, I think, available across India also. And the packaging part, we're known as a packaging brand only. We're known as a quality brand only, right? And उसके लिए कहीं ना कहीं सेंसिटी एक बहुत बड़ा टिक मार्क होता है to launch a new product. न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, आपने अपने टेन्योर में 56 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एंड आई एम श्योर थ्रू दीज प्रोडक्ट लॉन्चेस देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग दैट यू हैव गेन्ड. आई वुड रियली वांट आवर लिसनर्स टू लर्न फ्रॉम दोज एंड know that what is must to do during a product launch and what is not to do during a launch. I think first thing मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो गलती की बात भी करना चाहिए आपको. Don't stop your walking if you had made any mistake. And the new product is very 3-word sentence, new product development, that's it. But behind these 3 words there was millennial world required to strategize, to visualize your product is again no timeline. मतलब अगर मैं आज सोचना शुरू करता हूँ, मे भी मुझे 2 महीने बाद मेरा आंसर मेरे माइंड में आए, 4 महीने बाद nobody knows, right? Once you visualize, उसी में लोग क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार समझ में नहीं क्या करूँ, लॉन्च क्या करना है, राइट? उसी में बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि लॉन्च कर देते हैं, लोग हिम्मत से आगे जाते हैं, लाइक प्रोसेस फॉलो करते हैं. मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन माय टेन्योर आई थिंक आई हैव ट्राइड 92-93 प्रोडक्ट्स, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, because of there was no one reason I can say, there was several reasons, either market acceptance, the you can say the pricing, the flavor, the tonality, I can say the timing when you plan to launch, this is also very critical. So उसमें से मैं 50-60 लॉन्च कर पाया अपने टेन्योर में. और each and every person from I can say office boy to the promoter is important role to launch a product. When I say office boy, so like जब हम launch sensory करते हैं
तो उस बच्चे का काम होता है कि वो पूरे बॉटल लाइक कैप्स में सारे फ्लेवर को मिक्सिंग करके रखना है, नंबरिंग करनी है और एक एक फ्लेवर खा के पानी पी के पैलेट चेंज करना होता है अपना। उस बच्चे का काम ये होता है कि उसको बताना नहीं होता है कि कौन सा फ्लेवर, दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड टेस्ट, राइट। तो उसका भी उतना रोल होता है। सब when I say the promoters, so they are the right people, they are the right decision maker to take a right decision ki are you going to launch or not. Between these people, marketing is also important, legal is also important, finance is also important, purchase is important, dispatch is important, quality is important, every department is required, right? See, means me as a brand head, I can say when I get a report, research report, a particular like flavor ki are these flavor is running in the market, we have to plan the launch. So मुझे उसकी एक तो आपको सेल्स में नंबर डंडा भी देना है कि मुझे इतना बिजनेस चाहिए, राइट। तो उसका एक अलग पेन होता है। प्लस टू टेकिंग द डिसीजन इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। मतलब प्रमोटर्स को अलग देखना है, सेल्स को अलग देखना है और मेरी ब्रांड इमेज अलग देखनी है, राइट। उसमें फिर बिकॉज प्राइसिंग इज ऑल्सो अगेन बिग एंड पार्ट, because of course as a promoter they want a profitable business for the particular product. सेल्स कहता है नहीं भाई मुझे नया प्रोडक्ट है, सेल का एमआरपी कम करके दे दो। मैं कहता हूँ मेरा ब्रांड इतना अच्छा है कि मैं तो अपनी ब्रांडिंग कम नहीं करूंगा, राइट। कांस्टेंट, राइट। लीगल कहती है कि दैट बडी यू हैव टू फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज, यू हैव टू फॉलो द फीकी, यू हैव टू फॉलो द एफएसएसआई। उनकी फॉलो करने लगे तो हम पैकेट बना ही नहीं सकते, राइट। परचेज बोलता है मेरा मिनिमम एमओक्यू है कि आप इतना प्रोडक्ट लोगे तभी मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाऊंगा, तभी इतना लिमिट में दे पाऊंगा आपको। डिस्पैच बोलता है सर आप इतना कार्टन एक बार में डिस्पैच करोगे तभी मैं प्रोडक्ट दे पाऊंगा। सो देयर वाज सो मेनी टिक मार्क दैट नीड टू बी अप मार्क, राइट, कि आपको टिक ऑन करना है तभी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। बट जब वो प्रोडक्ट हो जाता है तो दैट रिएक्ट्स अ बेबी ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड हेड एंड इट्स फील वेरी प्राउड फीलिंग आई कैन से व्हेन आई see my product on the shelf, when I see my product on my big like quick commerce, so that I can say that was my product. और बट यस जब उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं, फ्लेवर मैच नहीं हो पाता है, कभी टेस्टिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, है ना, लॉन्च नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। बट आई थिंक आई कैन से दिस इज एक्चुअल वी हैव लर्न फ्रॉम द बुकिश नॉलेज ऑल्सो कि देयर वाज सम पैरामीटर टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। Of course, that texture can be defined in different texture in practical life, but अगर आप करो तो हो सकता है, ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है। और ऐसे ऐसे ब्रांड है इंडिया में, आई कैन नॉट टेल द नेम, दैट ओवरऑल एंटायर कैटेगरी हैज रिमैप्ड, ओवरऑल दे रिमैप द एंटायर पैकेजिंग, और पैकेजिंग रिमैप करने के बाद वो बैकआउट भी हो गए, मार्केट से चले भी गए वो, राइट। सो दैट्स टोटली अ ब्रांड कॉल, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी strong decision, you cannot feel the actual problem, actual pain of the consumer, actual pain of the markets. You have to do it, otherwise आपको कभी पता नहीं चलेगा सच्चाई कि हम गलत कर रहे हैं या सच कर रहे हैं। और कंज्यूमर साइड से देखो तो उनके लिए एक नया सिर्फ कोरियन फ्लेवर लॉन्च हुआ है, पेरी पेरी फ्लेवर लॉन्च हुआ है, एंड सो मच इज गॉन बिहाइंड दैट लॉन्च। I think I can say it's a very proudly moment for me, I can say, because and entire category have a very big competitor in the market, because that was come under the puff category, and for the puff there was huge market size in India. I think around more than I can say billion market size है इंडिया में। तो उसका तो कुछ भी परसेंट हम नहीं शेयर करते अभी, बट देयर वाज अ कंपटीटर तो कि उनका शेयर ज्यादा है मार्केट में। बट दैट कैटेगरी इज नोन फॉर द किड्स कैटेगरी, राइट। That category is known for the innovative flavor category. That is when you know you have done the right. Competition के बारे में आपने बात की है, अभी आपने जो लेटेस्ट कैंपेन लॉन्च किया था, you already have 14 million cumulative views across platforms, and आपका अपना भी मार्केट शेयर 60% है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन इंडिया। While your competitor Doritos, उसका जो डिजिटल शेयर ऑफ वॉइस है वो आपसे काफी ज्यादा हायर है। They have approximately 63% share of voice. I can say one thing that Doritos is known for the USA brand, it's not Indian brand. We are known as the Indian brand first. Yes, of course, consumer नहीं मानते, माता है consumer हमें बाहरी विदेश बोलते हैं, हम बाहर के brand, because my packaging tell us the consumer कि तो Indian हो ही नहीं सकते हैं। Because when I speak to any people, जब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है,
दे डोंट बिलीव, अरे आपका ऑफिस फैजाबाद कैसे हो, मुझे लगता है बाहर की ब्रांड हो आप. फ्रॉम डिजिटल एरा आई कैन से, मुझे ऐसा लगता है कि yes there was so many scope is required to improve because digital era is day by day growing on everywhere, but as you mentioned reach views or million billion, that was I can say just a number, just a number. वही है, जितना आप शुगर डालोगे उतना मीठा होगा, सिंपल सी बात है, राइट. और they invest more than my budget on a daily basis, right? So absolutely, they will get a more millionaire views. The important part is how that reach that views or convert on the sales. This is very important part, right? अगर मुझे वो नहीं करना पड़ रहा फिर भी मेरा सेल अच्छा है, there is no requirement. First thing. Second thing, as you mentioned 14 million या 60 million जो आपने थे, मुझे तो याद भी नहीं, आपको रिसर्च किया आपने, आपको याद भी है. तो that was one campaign, and my campaign was totally dedicated for the brand awareness only, not conversion, right? Because we consider as impulse brand. और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डोरिटोस तो क्या करता है मुझे नहीं पता, बट हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे इतना पता है. बट येस देयर वाज अ स्कोप टू इम्प्रूव बिकॉज ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है ना, उसको पकड़ना भी मेरा भी फर्ज बनता है. हाँ पकड़े हैं, बट थोड़ा और तेजी से पकड़ना है उसको. And that will be happen on not randomly at one level, that will be happen on like gradually it will be happen. एक समय था जहाँ हम like I can say 1000 में रहे होंगे, आज हम million में पहुंच गए हैं. And I can say from marketing point of view, digital we are not doing too much on digital. We are on digital to sustain the brand presence on digital, right? And my work reflect on my packaging, my work reflect on my quality, my work reflect on myself on the retailer outlet. Because आज भी लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर करके डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं. और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि दैट कंज्यूमर कंप्लेंट इज ऑल्सो कम अंडर माई पॉकेट. तो मुझे वो पेन दिखता है कि आई हैव ऑर्डर समथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट and I received the expired product, I received something else, right? वो जो कंज्यूमर की एक्सपीरियंस है ना, दैट एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज करना बहुत टफ है आज के टाइम में. बिकॉज और जीटी में क्या है, रिटेल में क्या है कि आपने पैकेट देख के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, राइट? बट आप मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब डिजिटल का मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम अलाइन विद द डिजिटल, बट वो ग्रेजुअली जब समय आएगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. इतना बड़ा टास्क नहीं है कि उसके वजह से हम कुछ पीछे जा रहे हैं. बिकॉज माई लॉन्च एंड एवरीथिंग विल बी हैपन वेरी गुड मैनर. आपने बहुत सही बोला, क्योंकि मार्केटिंग फ्रेटर्निटी में आज भी ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि आप जितना मनी डालोगे, जितना बजट डालोगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल दैट्स गोइंग टू कम बैक टू द ब्रांड. यस इट इज, बट ऑल्सो अदर फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो होलिस्टिकली मार्केटिंग को देखना आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. जैसे आपने बहुत सही कहा कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे आप हैंडल कर रहे हो, आपने शेल्फ स्पेस कैसे हैंडल किया, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर लॉन्चिंग, आपने कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझकर अपने पैकेजिंग में क्या चेंज किए, दैट इज ऑल्सो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट सेल वॉल्यूम. करेक्ट. हाँ मतलब सी दैट्स ऑल, सी मतलब ईच एंड एवरी पैरामीटर बस सेम वेटेज आई कैन से. कोई प्लस माइनस नहीं होता, किसी का प्लस है किसी का माइनस है, बट एंड ऑफ द डे होलिस्टिक मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक इट्स कॉल्ड 360 मार्केटिंग. समटाइम्स पीपल आर डिपेंडिंग ऑन ओनली like ऑफलाइन मार्केटिंग, समटाइम पीपल आर डिपेंडिंग ऑन ओनली डिजिटल मार्केटिंग. नाउ एक अभी आ गया एडवांस मार्केटिंग, न्यू टर्म यूज्ड, राइट? दैट ब्रांड हैज टू बी kept at every level, which includes gaming integration, which includes the influencer activation. Now influencer, I think से influencer का एज कुछ और हुआ करता था पहले, बट अभी तो influencer हर घर में influencer हो गए हैं, right? Each and every home has an influencer. Either their songs, either their dance, either their consumption, right? वो भी कैटेगरी बहुत अब डे बाय डे बहुत ही क्लटर्ड होते जा रही है, नो डाउट. बट as a brand, from brand point of view, I can say yes, holistic is very important, and brand has to be do a marketing part and very all 360 level. To print a poster on 300 GSM on 12 by 17 के साइज पे,
is nothing for the brand, but for the consumer, for the particular brand when they placed at the particular retail shape, that tell us what is brand, right? वो जब हम PPT में देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमें, और जब वो प्रिंट होता है 12-17 के साइज पे 300 GSM में 3 स्टिप गमिंग करते हैं उसको, और दुकान के सामने लगता है और 10 मिनट में निकल जाता है, राइट? उसकी लाइफ नहीं होती, नो डाउट 2 सेकंड की लाइफ होती है, पर उस 2 सेकंड के अंदर जो कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है उस ब्रांड के, उस पर्टिकुलर स्टोर पे वही हमारा ब्रांड होता है, वही ब्रांड मार्केटिंग हेड है, वही हमारा सब कुछ वही होता है, राइट? और सेम पोस्ट को जब हमारा FB इंस्टा पे पोस्ट होता है तो लोग स्क्रॉल करके चले जाते हैं, राइट? उस पर्टिकुलर आई थिंक आई कैन से सेकेंड में आजकल तो इंस्टाग्राम पे 0.3 सेकेंड 0.4 सेकेंड की टाइमिंग स्पेंड हो चुकी है, बट यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। मगर इफ यू वांट टू सस्टेन योर ब्रांड, इफ यू वांट टू टारगेट योर TG दिस एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 24, यू हैव टू डू इट। वही नेक्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स, वही नेक्स्ट कस्टमर है। प्लस आपने जो बोला दैट एक चीज होती थी पहले पोस्ट कोविड, नहीं बिफोर कोविड सॉरी, आउटडोर प्रिंट मीडिया, मैगजीन प्रिंट, जो कि हमारे सबके घर में मैगजीन आते थे, अच्छे से मैगजीन होते थे, उसमें अच्छे अच्छे ऐड होते थे। वो बिफोर कोविड बहुत एक ट्रेंड था उसका, राइट? आज के टाइम में पोस्ट कोविड के बाद क्या वो खत्म हो गया। क्या हो गया? वो इतना एक्सपेंसिव एसेट होता है कि उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती, ट्रैकेबिलिटी नहीं होती है। डिजिटल वाले क्या करते हैं, वो मेटा से क्लिक किया, डेटा निकाल दिए मिलियन और व्यूज में, हम लिख दिए वी लिख दिए, अब लगता है अच्छा 40 लाख लोग ने देख लिया, तो बहुत अच्छा हो गया भाई। भाई वो जो आउटडोर लगा है उस 40 लाख लोगों ने कितनी बार देखा होगा, नोबडी नोज, इसलिए वो फेल हो गया। Digital is only, I can say, benefit because they have a number. This is only call, right? Because yes, other brand like D2C brand, like when I was part of Chayos, it was actually D2C brand. For those brand, digital quite impressive because इनकी conversion, उनकी CPV value impactful होती थी कि अगर एक ऐड देखिए कोई कन्वर्ट होकर उनके ऐप पे जाता है या जोमेटो पे जाता है, स्विगी पे जाता है, वो चाय ऑर्डर करता है, उनकी कन्वर्जन अच्छे से हो जाता था। बट मेरे केस में तो भाई, मैं अगर ऐड दिखा के आपने क्लिक कर लिया तो मैं अपने ऐप पे लेके आऊँ तो आप तो सेटिस्फाइड नहीं होगे। पहली चीज तो हम आपको 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे, चलो वो भी नहीं करना मुझे, आपको हमारे जो दूसरे भाई ब्लिंकिट है उनको मैंने दे दिया कि आप ब्लिंकिट से ले लो। अब ब्लिंकिट ने बाई चांस कुछ कष्ट खराब कर दिया आपके साथ, जो आपका एक्सपीरियंस ब्रांड के साथ वो खराब हो गया। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ रिडायरेक्ट करूँ आपको, तो मैं बेटर करता हूँ कि भाई आप मेरे वेबसाइट पे आ जाओ, आप ब्रांड को देख लो, हु आई एम, व्हाट वी आर ऑफरिंग। इफ यू फील दैट नहीं आई हैव टू परचेज, तो दैट योर कॉल, यू कैन परचेज फ्रॉम एनीवेयर, बट आपको ब्रांड को पता होना चाहिए। तो फ्रॉम ईच एंड एवरी कैंपेन आई हैव टू रिडायरेक्ट माई वेबसाइट ओनली बिकॉज वी आर रनिंग 2 वेबसाइट, वन इज फॉर द ब्रांड और वन इज फॉर द शॉप। शॉप इसलिए है कि अगेन कुछ कस्टमर अभी भी हैं इंडिया में जिनको वेट करने की आदत है, so for those people who are keeping D2C website, otherwise all the redirection will be happen to my brand website, जिसमें आपको सेल भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ मेरी ब्रांड को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना है, व्हाट इज द ब्रांड, क्या फ्लेवर है, क्या फ्लेवर नहीं, क्या MRP, दैट्स इट। आप अगर आपको लेना है तो आप जाके बहुत ओपन रखा मैंने, कस्टमर को फिक्स नहीं रखा, बिकॉज अभी क्या है दैट देयर वाज वन एक नया वर्ड स्टार्ट हुआ है लास्ट आई थिंक फ्यू डिकेड्स, बाउंस रेट। मतलब लोग आते बहुत लंबे लंबे हैं, मेटा वाले डेटा दिखाएंगे इतने लोग आ गए, यूट्यूब पे 10,000 लोग रिडायरेक्ट हो गए, ब्लडी 10,000 लोग जो आए हैं ना, वो 10,000 में कन्वर्जन 2 लोगों का हुआ है, ठीक है ना, नंबर तो 10,000 का दिखता है। उनकी बाउंस रेट अब कम फ्रॉम द कार्ट, एडिंग द कार्ट टू पेइंग द अमाउंट टू डिलीवरी एड्रेस, फ्रॉम एवरी स्टेप वो बाउंस रेट होते जा रहा है। उसकी रीजन यही है दैट द कंज्यूमर इज फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज इतना प्रोसेस हो जाता है, लेंथी प्रोसेस होता है कि उनको कहते हैं भाई मुझे नहीं चाहिए, इससे जब मैं नीचे उतर के मैं रिटेल आउटलेट से ले लूंगा, इससे नीचे उतर के मैं अपने ब्लिंकिट कर लूंगा मैं, राइट? तो वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम में कि आपको मतलब सब कुछ बड़ा मेंटेन रखना है। आपको D2C में रखना तो कैसे रखना है, B2B में रखना तो कैसे रखना है, आपको रिटेल में रखना तो कैसे रखना है। तो मी एज अ ब्रांड हेड आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन आई डू अ प्रमोशन फॉर एवरी प्लेटफॉर्म। तो क्विक कॉमर्स का अलग पेन होता है, राइट, रिटेल का अलग पेन होता है, मॉडर्न ट्रेड का अलग पेन होता है,
होरेका का अलग पेन होता है एंड एक्सपोर्ट का अलग पेन होता है. To maintaining the sustainability of that promotion for each channel is very critical for me. तो मैं होलिस्टिक प्लान ऐसे बनाता हूँ कि भाई उससे मॉडर्न ट्रेड भी चल जाए, उससे जीटी भी डिस्टर्ब ना हो और क्विक कॉमर्स भी डिस्टर्ब ना हो. इफ यू सी माई सोशल एरा, सो आई ऑलवेज यूज ऑल क्विक कॉमर्स लोगो. मैं किसी एक पे लोगो प्लेस ही नहीं करता. भाई क्यों करना मुझे? बिकॉज फॉर मी एवरी क्विक कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट. For me, that Horeca, that airlines part, that hotels part is also very important for me, right? तो उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो प्रमोशन सिर्फ अदर कैटेगरी कर रहे हैं, हमको तो करते ही नहीं है, राइट? तो आई ऑलवेज ट्राई, मतलब कि दैट टू कीप दैट प्रमोशन थॉट कि ईच कैटेगरी को चैनल को हम कैप्चर कर पाए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो इजली. Very nicely put. So, आपके according, what is more easier? Is it easy to premiumize a local brand or actually localize a global brand? Both sentences, I think, similar weightage. From local to globalize is just about quantities only, right? And from globalize to local Doritos, right? दोनों एक ही कैटेगरी फील होते हैं. And both have a similar strategy, I can say. Because see, Indian markets is very differentiated market. Each and every state has own a country. Each and every market has their own, I can say, palette, right? Means एक state है नॉर्थ ईस्ट में लोग तीखा ही खाते हैं सिर्फ. They prefer only spicy, right? एक मार्केट है यूपी उत्तर प्रदेश, एक मार्केट है मुंबई महाराष्ट्र, राइट? महाराष्ट्र पीपल इज ओनली कीपिंग बिगर पैकेट, only bigger. They don't want to smaller packet. UP is taking only smaller packet. But when we compare Mumbai to Uttar Pradesh in terms of business, always UP is number one. Because उनकी जो number of pieces की जो rotation होता है ना, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि मुंबई का जो बड़ा पैकेट लिया उससे भी compete हो जाता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जैसे मैं अपने ब्रांड के बारे में बात करूं तो नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग अराउंड मोर देन 35 कंट्रीज इन अब्रॉड, राइट? Which include USA also, China also, every country we covered. So we are getting a good response from export market. I think we have more than 20% share from export market, and because in export there is a private label is also working, right? And the same flavor is also running in their market, particular market. और उनकी अलग एक पैलेट होती है, एक्सपोर्ट की अलग पैलेट, अलग कंट्री की पैलेट होती है. उस पैलेट को मैच करना इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर मी. जो ग्लोबल ब्रांड है उनको यहाँ पे लेके आना इट्स लिटिल बिट टफ. लाइक दे कैन अंडरस्टैंड द पैलेट, बट आई कैन से जितना मुझे पता है उतना उनको नहीं पता होगा. बिकॉज वी आर इंडियंस, वी नो दैट हमारी इंडियंस की पैलेट क्या होती है, हमें पता है. और हमें अपने फ्लेवर को प्रमोट करने में उतना टाइम ही नहीं लगता है जितना उनको लगेगा, जितना वो ग्लोबल को आके हमारे यहाँ करने आए हैं ना, उनको ज्यादा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से. मुझे इतना टाइम लगेगा अपने इंडिया में, मतलब क्योंकि हम तो मतलब अगर हम किसी एक स्टेट में स्ट्रांग हो जाए तो हम कंफर्टेबल अपना मतलब सेल हमारा कंटिन्यू चलता रहे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगा. Great to hear that. आपने इंडियन डेयरी मार्केट को भी काफी अच्छे से स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया विद मदर डेयरी, and which is now currently, the entire industry is valued at $160 billion. और काफी unorganized भी है ये सेक्टर. So लेकिन in spite of that, mother dairy has kind of been able to become a very key national player. आपने उसके अंदर काफी सारी चीजें भी एक्सपीरियंस किया, फ्रॉम पैकेजिंग टू POSM टू रूरल कैंपेन्स, penetrating each of those last mile delivery also. और इसमें भी सप्लाई चेन प्लस गवर्नमेंट के रेगुलेशंस काफी ज्यादा हैं. तो ऐसी इंडस्ट्री में what does it actually take to kind of build a brand book which is able to promote or sell a subsidized commodity? See, dairy is very differentiated market for India because, as you mentioned, Mother Dairy, Amul, there's two brands. But I can say these two brands also not capable to sell their production across India. There was regional brand.
फिर यू ट्रेवल ईस्ट लाइक बिहार या झारखंड, तो वहाँ पे कोई ब्रांड सांची चलता है. देयर वाज ब्रांड नमस्ते इंडिया इन नॉर्थ, राइट. देयर वन ब्रांड इन पुणे, अदर ब्रांड. सो of course I can say they're the main player in India, but they are not still penetrate their product in you can say product particular state, because I cannot say that कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बस as you mentioned supply chain is very big concern. The life cycle is is very small. very strong, and for each and every state brand cannot be established new factory, right, कि वहां से फैक्ट्री स्टेब्लिश करके हम दूध को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट्स द रीजन कि वो ब्रांड नहीं कर पाते हैं और लोकल ब्रांड को टाइम मिल जाता है वो पनपने के लिए, अच्छा करने के लिए. सेकेंड थिंग आई कैन से द वे टू प्रमोट, आई कैन से to shift from dairy to other category, like you can say cheese, like you can say butter. There is a one category which is easily survivable for everywhere, right? This is solid. First thing, लाइफ साइकिल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, है ना. कहीं से इजिली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से कहीं भेज सकते हैं आप, है ना. And their packaging also, you have a different type of packaging patterns also in the butter. But I can say in dairy also there was a scope. Because मैं अगर बात करूँ just example, because you're sitting in Delhi NCR, so there was so many brand to selling their milk in glass bottle also in very good manner, very अच्छे पैकेजिंग में करते हैं जो कि इजिली वो कर सकते हैं. बट अगेन कंज्यूमर नीड टू पे दैट टाइप ऑफ मनी ऑल्सो. अभी हम जो आई थिंक आई डोंट नो रेट क्या है, 20 से 25 रुपये जो भी होगा, आधे लीटर की रेट होगी, उसमें आप लेते हैं तो मोर देन 100 रुपीज की होगी, बिकॉज पैकेजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो. तो इफ कंज्यूमर इज रेडी तो ब्रांड हैज टू बी टेक द कॉल. मतलब आप सोचो, आज मदर डेयरी अमूल ग्लास बोतल में दूध नहीं देता, राइट. मदर डेयरी अमूल आज भी वो आई थिंक बायोडिग्रेडेबल के बॉटल में दूध नहीं देता. But there was a brand in DS. DS is the brand who has launched their milk in biodegradable only, right? एक प्रोडक्ट है वो कौन सा लाइट करके कुछ तो प्रोडक्ट आता है, मुझे याद नहीं उसका ब्रांड. दे द ब्रांड जो कि ऑलरेडी वो डिजिटल में धूम मचा रखा है उसने. दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन ग्लास बॉटल. यहाँ तक कि वो ग्लास बॉटल कंज्यूमर को फ्री भी दे देते हैं कि भाई आप घर पे रखो अपने यूज के लिए. ये कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर, क्योंकि सी ब्रांड लॉयलिटी जो है ना, उसकी भी एक टाइमलाइन है. वो टाइमलाइन एक बार खत्म हो गया तो क्रिएट अ न्यू ब्रांड लॉयल्टी अगेन वेरी टफ टास्क फॉर द ब्रांड. और आई कैन से मतलब मेरे पास दो तीन एग्जांपल भी है. लाइक फेना एक ब्रांड है, आपको याद होगा. एक ब्रांड धारा है, एक टैगलाइन होता था कि धारा शुद्ध धारा, एक टैगलाइन हुआ करता था. फेना ही लेना एक टैगलाइन होता था. बट बिकॉज ऑफ देयर समथिंग हैपन, मिस हैपन विद दिस ब्रांड, नाउ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर मार्केट नाउ, राइट. ब्रांड लॉयल्टी अभी भी मेरे, जब मैं एज अ कंज्यूमर मेरे पास अभी भी उनकी टैगलाइन याद है, बट आई एम नॉट यूजिंग देयर. नेक्स्ट कस्टमर के लिए तो कभी मार्केट ही नहीं किया उन्होंने. करेक्ट. मुझे भी टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक बार लॉयल्टी जो खराब हो गई, नहीं कर सकते. मुझे याद है कि मुझे फेना एक ब्रांड है, बट मैं नहीं लूंगा आपका सर्फ, राइट. तो ब्रांड लॉयल्टी पे काम करना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको कस्टमर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसमें भी ध्यान देना चाहिए आपको. कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इवॉल्विंग एज पर कस्टमर बिहेवियर. करेक्ट, यस. मतलब आपको अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो मतलब ये सोचो कि आपकी हमेशा चलती रहेगी तो नहीं हो सकता भाई. वो जमाना टाइम चेंज हो गया है. इंडिया का पहले भी, इंडियन कंज्यूमर आल्सो वेरी, आई कैन से फ्रॉम 90s से तो बहुत डेवलप हो गया. अभी लोगों को इंटेलिजेंट हो गए, डिजिटल इतना आगे हो गया है ना. पहले के लोगों को तो कुछ भी कर दो पता ही नहीं होता था. आज तो छोटे छोटे बच्चे भी वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट पता होता है, उनको पता होता है कि क्या होता है, व्हाट डज मीन. तो आज आपको ब्रांड अगर मार्केट में सस्टेन रहना है तो आपको बहुत सारे पैरामीटर को आपको कैटर करना पड़ेगा. आपने आयुर्वेदिक वेलनेस कैटेगरी में भी काफी डीपर तरीके से वर्क किया है, और ऑर्गेनिक इंडिया में अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक वेलनेस के इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, इतना कंपटीशन आ गया है, सो आज के डेट पे आप उसमें ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग टू बी एबल टू पेनिट्रेट डीपर? सी because again you mentioned right, my work experience is very diversified. I work with core FMCG, core dairy, core Ayurvedic, D2C, now Impulse, right? When I say Ayurvedic, so yes, now because as like from 2014 when Prime Minister joined, right?
when he introduced Yoga Day. So from that day, now Ayurveda has completely changed. Before 2014, I might be Yoga Day was there, पर मुझे लगता है इतना लोग फोकस नहीं करते रहे होंगे, आयुर्वेदिक की तरह फोकस नहीं रहता होगा. And particular Organic India as a brand, I think doing well in their category because they are the only one brand who's selling their chai in tulsi with tulsi, right? They are only one brand who's selling their supplements with herbs, right? उसमें भी क्या होता है that like there was a brand Himalaya is also a brand who's selling their supplements, but the difference क्या होता है that किसी भी herbs को अगर आप किसी बॉटल में पैक करते हो कैप्सूल फॉर्म में, राइट, तो पहले चीज तो होती है कि कैप्सूल की जो आउटर है वो क्या मटेरियल है, लाइक वो प्लास्टिक प्लाज्मा है या फिर आप कोई और मटेरियल यूज कर रखा है हमने. दिस इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न. तो मेरे लिए अगर होता आज के टाइम ऑर्गेनिक इंडिया में, तो मैं तो सबसे ज्यादा प्रमोट उसी को करता कि वी आर द ओनली वन ब्रांड इन इंडिया हु इज पैकिंग और माय हर्ब्स इन द आई कैन से प्लांट प्लाज्मा ओनली, द प्लांट प्लाज्मा ओनली, इसमें पैक होता था वो. दूसरी चीज ये था दैट वी नेवर कट आवर हर्ब्स. हम हर्ब्स को कभी कट नहीं करते थे. होल हर्ब्स को हम ड्राई करते थे, होल हर्ब्स को ही हम कैप्सूल फॉर्म में फिल करते थे, which is USP of the herbal supplement of the Organic India. Third point is that 100% organic. I can say, आप भी इस पे अगेंस्ट हो सकती है कि कैसे ऑर्गेनिक हो सकता है. Before I joined Organic India, I was the same concern कि सही बात है 100% ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है. But after visiting the plant, after visiting the you can say villages या farmers villages, then I can realize that yes, it is actual 100% organic. 100% ऑर्गेनिक मतलब लिखने को तो कोई भी कर सकता है, राइट, बट उसकी जो फॉलो गाइडलाइंस होते हैं, बहुत लंबे गाइडलाइंस होते हैं फॉलो करने के लिए. और आई कैन से कि ऑर्गेनिक, बिकॉज बाकी का तो मुझे पता नहीं कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की जो सब टाइटल्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रमोशन स्कीम्स होते हैं, दैट वाज एक्चुअली कोरिलेटेड फॉर द ऑर्गेनिक थॉट ओनली, राइट. सो मेरा अगर कंसर्न होता तो मैं तो सिंपल यही बोलता कि भाई यू कैन ट्राई एंड चेक इट, दैट्स इट. बिकॉज इफ यू नॉट ट्राइंग माई प्रोडक्ट यू कैन नॉट से एनीथिंग. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई माई प्रोडक्ट, देन यू हैव टू टेल अस द प्रोडक्ट क्वालिटी. बिकॉज हर कोई बोल रहा है कि मैं ऑर्गेनिक हूँ, हर कोई बोल रहा मैं मतलब हार्वेस्ट का काम कर रहा हूँ, हर कोई बोल रहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं भी सेम ही बात बोल रहा हूँ. तो व्हाट इज द डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दैट मैं सिलेंडर कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ, please try it. If you tried my product, definitely you tell me about my brand. मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप ही बोलोगे मेरे लिए. And that's the key mantra for the Organic India when I launched the Clean in India, in Organic India. Clean was the product. I think उसकी MRP I think होती थी 12,000, 13,000. उसको सेल करना एक बहुत इंडियन मार्केट्स में इज वेरी टिपिकल. बट उसको भी हमने सेल करके दिया था, सेल करते थे उसको भी. देयर वाज अ पीपल हु बिलीव सच थिंग कि नहीं भाई, आज हम लोग योगा ट्रेनर से मिलते हैं, आज हम लोग डायबिटिक डॉक्टर से मिलते हैं, वो एक डाइट चार्ट देते हैं कि आप सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना, डिनर कर लो, लंच कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कीटो डाइट कर लो, ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो, राइट. सम पीपल फॉलो, नो डाउट, बट सम पीपल नॉट फॉलो. इतने नौटंकी हो जाता है उनका कि लोग नहीं करना चाहते हैं. बट थ्रू द क्लीन मैं ये बोलता था कि आपको कुछ मत छोड़ो भाई, सब खाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है. उस खाने के साथ मेरा ये ऐड कर लो, दैट्स इट. और इंडियन में अगर आपने सपोज किसी को अगर बाई चांस रोटी बहुत पसंद है, अगर आप उसको बोलो रोटी नहीं खाना है तो माइट बी फ्रस्ट्रेट कि अरे क्या कर रहे हो भाई, तो मेरा खाना बंद कर दो. और अगर आप भी बोलो ठीक है रोटी भी खाओ आप, कोई बात नहीं, बट इसके साथ ये जूस ले लो आप मेरा, बस दैट्स इट. तो ही इजिली ट्रांसलेट टू ए प्रोडक्ट. तो उस टाइम भी मैंने मतलब आई थिंक हमें ज्यादा तो नहीं थे, दिल्ली एनसीआर में 10 या 12 कस्टमर हुआ करते थे. एंड दे कम एंड दे टेल अस दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट. बिकॉज इंडिया में फैशन को छोड़ के, ब्यूटी एंड फैशन को छोड़ के कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है जो इतनी महंगी कैटेगरी बिक पाए और इंडियन कंज्यूमर एक्सेप्ट कर पाए, राइट. बट अगर आपके पास कुछ सच्चा है, कुछ सही है, तो एक्चुअली एक्सेप्ट द मार्केट, आपको मार्केट एक्सेप्ट करेगा. अगर नहीं है
तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं. बिकॉज प्रोडक्ट टेल अस, प्रोडक्ट, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस अबाउट योर प्रोडक्ट टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस. मार्केटिंग फर्स्ट टाइम कस्टमर लेके आ सकता है, बट रिपीट परचेज के लिए आपका प्रोडक्ट बोलना चाहिए, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, एंड द ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस. I can say all three concerned, because I think a placement of any product is the role of salespeople, right? But pull up the product from the shelf is the responsibility of marketing guy, right? Very well said. Right, because आपके marketing में अगर power है, then you have to convince your customer to at least pull up the product. Once consumer pull up your product, then your quality, then your product works start. और उसमें भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेवर एक पैरामीटर आप बोल सकते हो. आज के टाइम में फ्लेवर के अलावा द करंट ट्रेंडिंग इज ऑल्सो वेरी कंसर्न पार्ट. अगर आप किसी घिसा पीटा फ्लेवर लेके चलते हो और उसी को लॉन्च कर दो और आप सोचो कि ठीक है पुल अप कर दिया, रिपीट दैट डज नॉट केम. बट अगर अदर हैंड अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कोई ट्रेंडिंग फ्लेवर लेके चल रहे हैं, तो आई कैन से दैट कि हाँ, दैट कैन बी इजिली मूवेबल, इजिली रोटेबल हो जाएगा वो मार्केटिंग. Thank you, Manoj, for sharing such crunchy insights today. Thank you so much, buddy. And I can say that it was a very wonderful time to spend you. And I think you have covered entire my life, entire my professional career. So it was good. And we hope for the best. Thank you so much. Thank you, Manoj. Whether it's that shelf appeal or sensory psychology, he reminds us that in a market like India, great marketing is not just storytelling, it's sense making too. If you found value in this episode today, don't forget to hit that follow button and share it with a fellow marketer who's hungry for smarter insights and maybe that snack.